As the sun rises over Nagpur, the day here begins not with slogans but with discipline. The morning Shakha, quiet, orderly, unassuming, sets the rhythm for an organization that has spent a century shaping minds rather than moments. This is where the Rashtriya Swayamsevak Sangh begins its day, and this is where our story begins. CNN News 18 has been granted exclusive access to the Resham Bagh compound, often described as the nerve center of the RSS. Within this expansive campus lies a complex ecosystem of training, thought and tradition that has quietly influenced India's social and political fabric for nearly 100 years. At the heart of Resham Bagh stands the Smriti Mandir. The most revered site for RSS volunteers. It is here that Prime Minister Narendra Modi visited last year to pay tribute to his ideological mentor. For Swayamsevaks, this is not merely a memorial, it is a site of memory, continuity and conviction. This is a part of Dr. Hedgewar Smarak Samiti Parishar, which is a trust that was formed after Dr. Hedgewar's death and in 1963. The whole Parishar, the whole compound is built over 7 acres of land. And let me tell our viewers that this is the CNN News 18, the first news channel, and this is the first time that any news channel has got exclusive access inside the premises, inside the compound of Dr. Hedgewar Smarak Smriti Mandir and its compound. And it has a long history. In the centenary year of the RSS, we will just try to explain what this entire compound in Nagpur means for the Swayamsevaks and why this is the most worshipped and most sacred place for all the Sangh volunteers, for all the Swayamsevaks. The land parcel of around 2.2 acres, it was first purchased by Dr. Hedgewar in 1933. Later, in 1963, after his death, the trust was formed and the trust purchased around 1.3 acres of land, and that was when the trust had 3.8 acres of land as total. They started building the temple Dr. Hedgewar Smriti Mandir. The Smriti Mandir houses the Samadhi of RSS founder Dr. Keshav Baliram Hedgewar. The structure is shaped like a chariot, made of brass and painted black, a color unchanged for the last 62 years. 6 horses pull the chariot, symbolic and deliberate, echoing the chessboard, suggesting strategy, patience and long-term vision rather than haste. This is the first time that any private channel has been given access to this compound. Sir, if you can explain to us, for our viewers, what this compound means and what all things this compound includes. इसमें क्या क्या है, कैसे, जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सोलर पैनल से पावर है, so that is about environmental sustainability. and यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि संघ जो बोलते हैं बाहर, so what संघ preaches, संघ practices, जो बोलते हैं बाहर वही करते भी हैं. तो पर्यावरण का भी, ये पंच परिवर्तन का एक हिस्सा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बारे में अगर थोड़ा सा बोले और कंपाउंड को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें. ऐसा है कि ये जो परिसर है, ये संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जो प्रशिक्षण वर्ग चलता है उसके लिए बनाया हुआ सारा ये परिसर है. देश भर के स्वयंसेवक यहाँ संघ शिक्षा वर्ग का अंतिम शिक्षण लेने के लिए आते हैं. ये जो भूमि है, ये भूमि संघ के संस्थापक
डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने ही ली थी। 1940 में जब उनका देहांत हुआ तो उनका अंतिम रिचुअल्स यहाँ हुआ था। उसी स्थान पर उनकी यहाँ समाधि है और उसके ऊपर ये स्मृति मंदिर यहाँ जो बाजू में है वो बनाया है। ये संघ के स्वयंसेवकों के लिए एकदम पवित्र भूमि है, प्रेरणा स्थान है। दूसरे सरसंघ चालक जी जो है माधव सदाशिवराव जी गोलवलकर, जिनको श्री गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनका भी स्मृति चिन्ह यहाँ है। So, sir, this is, we can say that this is the extension of the RSS headquarter, and this has been developed in a way so that it can actually house all the volunteers who are going to come here and understand the Sangh, and it can also be used as a training center with all the facilities. सर मैं एक बार आपके पास आऊँगी। आप रेशम बाग के यहाँ के संघ चालक हैं जी, नगर संघ चालक हैं। सर आपका नाम? मैं विजय कहते। सर यहाँ पे जो मैं जानना चाह रही थी, ये जो सोलर पैनल्स हैं ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, जैसे कि आपने पूरा रूफ में लगा रखा है, तो ये पूरा कंपाउंड को पावर करता है, और कितने सारे सोलर पैनल्स हैं? जी, यहाँ जैसे कि श्रीधर जी ने बताया, यहाँ वर्षे भर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं संघ से जुड़े हुए और भी संस्थाओं के, उन सारे ट्रेनिंग कैंप के लिए इसका उपयोग होता है। और इसलिए ये सारा मतलब महर्षि व्यास सभागृह है, स्मृति भवन एरिया है, उसके बाद में यहाँ पांडुरंग भवन है, यहाँ माधव भवन है, उसके पश्चात यादवराव जोशी हमारे प्रचारक थे, अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह थे, उनके नाम पर भी एक भवन है, और मधुकर भवन तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब जी, उनके नाम पर भी वो भवन है। ये सारे क्षेत्र की ऊर्जा जो है वो पर्याप्त रूप से यहाँ निर्मित होती है और उसी का उपयोग यहाँ किया जाता है। While explaining the significance of the Smriti Mandir, let me also tell our viewers the significance of the whole compound and why this is the most visited and most worshipped place alike by all the Sangh volunteers and the RSS functionaries. So this place keeps adding according to its requirement. The trust now has built over the decades, the trust has now built libraries, health facilities, hostels for students, dormitories for the volunteers, and then now we are standing in front of the auditorium. This is an auditorium that can house over 1,000 Sangh volunteers, over 1,000 people. It also has a bhojanalaya, they call it a bhojanalaya, where they can sit and eat, and there are all other places that that were built over the 7 acres of land. Crowning the structure is the Sheshnag symbol, the mythical serpent believed to hold the earth, representing stability and responsibility. The mandir is also the cremation site of M.S. Golwalkar, Guruji, the second and the longest serving Sarsang Chalak in RSS history. The Smriti Mandir plays the role of a pivot as the central focal point for the RSS and its volunteers, because the Smriti Mandir houses the memorial of Sangh's two most worshipped figures or functionaries, we may call them. The Smriti Mandir has the memorial of Dr. K.B. Hedgewar, who is the founder of the Sangh, and it was built in 1963. The idol was built with bronze metal, and it was then painted as black. Since then it hasn't been repainted again, and it was just it just received some minimal touch up. And the whole temple was built in 3 ways. It has the form of a chariot. It has 6 horses. The horses look like the horses of a chessboard, and it also has Nag symbols, because the idea was the second Sarsanga Chalaks, which also included the idea how the world is being held by the Shesh Nag. So it has the symbols of Nag. So these are the 3 things that
that featured in this temple, and the idea was created by the second Sarsanga Chalak of the RSS, the second and the largest. He was the Sarsanga Chalak for the longest time. He was the Sarsanga Chalak for 3 decades, for 33 years, and he was none other than M.S. Golwalkar. The first Shakha began in Mohitewada, now one of Nagpur's most fortified areas and home to the central RSS office. But the decision to form the RSS was taken earlier by Hedgewar at his residence in the presence of just 17 individuals. From that small gathering emerged a movement that would span regions, generations and ideologies. I am standing inside Dr. Hedgewar's ancestral house where he was born, and he grew up from here, and he also formed the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh. From the very first floor of this house, there is a long chamber where he held a meeting with 17 of his friends and colleagues in September in 1925, and from that very place he announced that the Sangh has been formed. It was the day of Vijayadashmi. This house was later, after years after his death, this house was purchased by the Sangh, and they are now slowly integrating this house to the Sangh structures in Nagpur. As the RSS marks 100 years, opinions remain sharply divided. Critics question its ideology. Supporters credit its discipline and grassroots reach. The debate is constant and often heated. Yet, across political lines and social narratives, one fact remains undeniable. The RSS has endured, expanded, and embedded itself deeply into India's public life. We are now standing at Dattaji Dadolkar Bhavan in Nagpur, and this Bhavan also works as Karyalay for Sanskar Bharati, and here we will be talking to Sangh functionaries and Swayamsevaks from across generations. So we have Sangh veterans, and we also have Sangh volunteers who are millennials, who are Gen Zs. So we are going to talk about what actually means to them, what is this centenary year of the RSS, and what is the significance of Sangh's 100 years. सर, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ. ये 100 साल हो गया है संघ का, और ये नागपुर से शुरू हुआ था, और आपने सब देखे हैं, जितना आप कैसे ये बड़ा हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, सब कुछ. तो सर, हाउ डू यू लुक एट इट? आप कैसे देखते हैं ये कैसे इवॉल्व कर रहा है? ये बहुत ही शानदार प्रवास रहा है 100 वर्षों का, और ये सब स्वयंसेवकों की त्याग, तपस्या, समय देने की सिद्धता, धन संपत्ति सब कुछ न्यौछावर करने के कारण ही ये सब खड़ा हुआ है. तो ये सामान्य स्वयंसेवकों के परिश्रम, अथक परिश्रम के कारण ये सब खड़ा हुआ संगठन है. एक कौटुंबिक संगठन है. अंग्रेज़ों ने जो हमको विरासत छोड़ी है, संस्था यानी उनकी नियमानुसार खड़ी होने वाला संस्था या संगठन, वैसा संगठन नहीं है. ये पारिवारिक संगठन है, और इसलिए सब संगठनों से भिन्न है. यहाँ हायरार्की होती है, किंतु उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, वह औपचारिकता मात्र होती है. बाकी सभी लोग एक ही परिवार के अंग है, इस नाते से व्यवहार करते हैं. इसलिए इसकी विशेषता है. ये भारतीय विचार है, ये भारतीय संगठन है. RSS नेवर वॉन्ट्स एनी पब्लिसिटी. RSS को कभी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी है. वो आप लोग कभी चाहते भी नहीं हैं कि कुछ भी पब्लिसाइज करें, लेकिन आप चाहते ना चाहते हुए भी अभी RSS एंड द डिस्कशन अबाउट RSS, it dominates the national discourse, in terms of social, cultural and political aspects. It just dominates it. तो ये जो आप लोगों को क्या लगता है कि ये अनवांटेड ग्लेयर है संघ के ऊपर, कि हर कोई संघ के बारे में बात करता है, हर कोई संघ के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देता है. तो 100 साल हो गया है, अभी कैसा लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बैन सब कुछ सह के अभी यहाँ पे खड़ा है? संघ में प्रचार विभाग है, लेकिन प्रचार विभाग का अपना एक लाइन पक्का है कि व्यक्ति का प्रचार नहीं होगा, कार्य का प्रचार होगा.
कि जैसे संघ बड़ा हो रहा है, संघ से प्रेरित संस्थाएं बड़ी हो रही है, तो नेचुरली प्रचार ये विषय आ जाता है, और वो जैसे आएगा तो उसके कारण ये सब आपने जो पूछा वो सब बातें आती हैं। तो जैसे बातें आती है, संघ बड़ा होता है, काम बड़ा होता है, तो बाकी सब चीज़ें क्रिटिसिज्म भी नेचुरली जो न चाहते हुए आते हैं। लेकिन आपने जैसा बोला कि जैसा आउटरीच बड़ा है, तो ये जो सब कन्फ्यूजन्स है वो कन्फ्यूज़न धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और एक प्रचार जो है एक पॉजिटिव मोड में भी स्विंग ले रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा संघ के जो यंग वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके पास आऊँगी। आप मिलेनियल्स एंड जेनजीज हैं, आप लोग संघ से जुड़े हैं, तो अभी जब आप लोग अपने दोस्तों के पास संघ के आइडियाज़ को लेकर जाते हैं, बात करते हैं, और बीच बीच में कुछ पॉलिटिशियन, जैसे कि मैं नाम लेकर बोल सकती हूँ मिस्टर राहुल गांधी, वो हमेशा उनके हर एक स्टेटमेंट में, स्पीच में वो आरएसएस को मेंशन करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे अपने दोस्तों को समझाते हैं, कैसे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप लोग आउटरीच करते हैं? जैसे हम संघ तो समाज का काम कर रहे हैं, तो युवा क्षेत्र में जब संघ जैसे संघ की स्थापना हुई तब से ही युवा क्षेत्र में संघ काम कर रहा है। तो हम जब देखते हैं तो युवा अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़ा है। यह इसमें संघ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जो नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं तो ब्रेक करने का काम तो समाज कर ही रहा है, और समाज क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको हमेशा जानता है। इसीलिए जो अनुकूल परिस्थिति जो आई है समाज में, वातावरण में, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका एक हम अभूतपूर्व समाज के लोगों का हम इसमें योगदान मानते हैं। संघ ने प्रयास किया है, लेकिन संघ के प्रयास को समाज का समर्थन है, इस वजह से आज युवा संघ के साथ जुड़ रहा है। सर आप भी देखे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में काम भी किए हैं, यहाँ से गए थे, आप फर्स्ट प्रचारक थे, तो आप भी देखे हैं कि कैसे आरएसएस का जो आउटलुक है वो भी चेंज हो रहा है, इवॉल्व भी हो रहा है। हर एक स्पीच में हम देख रहे हैं कि भागवत जी भी बोल रहे हैं, वो भी आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पार्ट है, लेकिन काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट हम देख चुके हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर भी अभी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो आप ये 100 साल हो गया संघ का, तो एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप कैसे देख रहे हैं? संघ के 100 साल हम बोल सकते हैं कि अपने भारत का सांस्कृतिक उत्थान, पुनरुत्थान भी उसी के साथ चल रहा है, ऐसा लगता है। और संघ ने सभी प्रदेशों में संघ का कार्य भारत में शुरू किया है। चूँकि मैं वहाँ प्रचारक था, तो वहाँ का जो एक वातावरण था वो संघ ने ही भेदा है। जहाँ नागालैंड और बहुत सारे क्षेत्र में बोला जाता था कि आप भारत से आए हैं क्या, जी, उसको एक राष्ट्रीय एकात्मता के प्रवाह में एक अपने जैसे भाई है बिछुड़ जाते हैं, उनको प्रेम से समझाकर और प्यार का आत्मीय का व्यवहार संघ के स्वयंसेवकों ने वहाँ जाकर दिया, वही रहे, वही के हो गए। और सेवा के कार्य है, बाकी सब दृष्टि से उन्होंने वहाँ कार्य किया। आज हजारों विद्यालय पूर्वांचल में चल रहे हैं, अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं, आरोग्य क्षेत्र में काम चल रहे हैं। और संघ को लोगों ने वहाँ परखा, नज़दीक से देखा। और जब वहाँ कुछ संकट हुआ, चीन का आक्रमण से लेके अभी बांग्लादेशी घुसपैठी से लेके हर आंदोलन में संघ के विचार से प्रेरित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अनेक संगठनों ने वहाँ कार्य किया। वो लोगों ने अनुभव किया कि हम लोगों को जानने वाले लोग हैं भारत में, नहीं तो वो इस तरफ आने से उन्हें भी चाइनीज़, जापानीज़ कुछ भी बोला जाता है, तो वो अनुभूति उनको संघ कार्य के कारण हुई है। तो ये संघ का तो पूर्वांचल के लिए तो बहुत ही बड़ा योगदान है। आप जेनजी हैं, कॉलेज में होंगे, तो ये अभी भी भागवत जी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो बोल रहे थे कि इंडिया के जो जेनजी है, भारत के जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, सबको भारत समझना चाहिए, एंशिएंट इंडिया समझना चाहिए, संघ को भी समझना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत का युवा निश्चित रूप से अनेक संभावनाओं को और ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में उसकी ऊर्जा को ठीक दिशा कैसे मिले, ये एक महत्वपूर्ण समस्या समाज के सामने है।
तो इसीलिए संघ ऐसा प्रयत्न करता है कि युवा अपनी ऊर्जा का राष्ट्रोत्थान में प्रयोग कर सके। इसके लिए उसका प्रबोधन कैसे हो। युवा एक कच्चे घड़े की तरह है, जैसा आकार समाज, शिक्षण संस्थाएं और उसका जो परिवार है, परिवेश है, उसको देना चाहता है, वैसा वो ग्रहण करता है। तो मुझे लगता है युवा जागरूक है और राष्ट्र के प्रति समर्पित भी है। अगर उसको वैसे अवसर और वैसा प्रबोधन मिलता है तो वो अपनी ऊर्जा को निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहता है। पर जैसे आपने बताया, ऐसे कुछ तत्व हैं जो युवाओं को भटकाते हैं। सरल मन होने के कारण युवा कुछ उन प्रकार की प्रवृत्तियों में भी जाता है, पर जब उसको सही संसर्ग मिलता है, संघ के किन्हीं कार्यक्रमों में, किन्हीं प्रचारकों से, ज्येष्ठ अधिकारियों से जब वो मिलता है, तो वो समझ पाता है कि नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे भारतीय समाज के लिए क्या उचित है और क्या मेरे भविष्य के लिए करना चाहिए। तो वैसा वो निर्णय लेता है, ऐसा मुझे देखने में आया है। Sir, my last question is for you. You look like a young professional who is also a Sangh volunteer. So when you are going to your colleagues, your friends, with the ideas of the Sangh, but then simultaneously when you see that, some young men, in the name of some organization like Bajrang Dal, and then they are attacking some of the, Christmas celebration or something somewhere. Jabki when we are constantly hearing Bhagwat ji saying that, we need to integrate everyone, we have to work for national integration, and we are one united community who are Hindus, Hindustanis. तो कैसा लगता है? Do you feel disappointed? देखिए, कैसा रहता है कि समाज में सभी जन रहते हैं। जैसे मोहन जी ने बोला है कि समाज में सभी जन हैं, तो मतलब क्रिश्चियन लोग भी है, हिंदू भी है, सभी लोग हैं। तो सबको समाज में रहने का है। भारत माता है, सबके लिए है। किसी ने ऐसा बोला नहीं कि भारत माता किसी के लिए नहीं। भारत माता में जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं। तो जो भी चलता है, जिसमें जैसे क्रिश्चियनों का चर्च जो चलता है, क्रिसमस चलता है, हिंदुओं का राम नवरात्र रहता है, दसरा रहता है, तो वो सब समाज में जो भी है, जो भी प्रोग्राम है वो चलते रहेंगे। उसमें विघटित करना ये कभी संघ ने किसी को बताया नहीं है। It may be praised or challenged, interpreted or resisted. But after a century of existence, the RSS is no longer an organization that can be overlooked. In India's national conversation, it remains a force that demands attention, whether one agrees with it or not.